for the future, certainly, both in the 100 as well as the 200. In fact, the fastest boy at this meet, Rehan Basha, told me about his rivalry with Castellino. He himself said it was very unfortunate. He had the twitch, and possibly that's what resulted in him not being able to give off his best even today. But that does not take anything away from the fabulous run by Gokul Pandyan from Tamil Nadu. Alluri Gautam starting out very, very well off the blocks, but what a finish there. And Milind, if we look at the list, in the sense 4 medals in track and field till now, out of the 4, Tamil Nadu's picked up 3 gold medals and 1 silver. Haryana's got the only other gold. Maharashtra, Punjab and Telangana with a silver apiece, and Punjab, West Bengal, Jharkhand and UP with the bronze apiece. So it seems that Tamil Nadu are certainly adding to the haul and are on their way, barring a major upset, to being the best as far as athletics are concerned. They already had a haul of 5 gold, 4 silver and a bronze medal. So you add these 3, they've already picked up 8 gold medals here. Certainly dominated the whole state. Tamil Nadu out here at the Khelo India Youth Games 2023 in Chennai. Yes, this event, mechanically speaking, success in the javelin, similar to all other throwing events. We all know depends largely on the speed. The spear-like implement, as you see there, leaves the hand. And while you're watching this boy, we have some of the other finals also coming up very shortly. And coming up also is tea and coffee for you. Refreshments as you asked for. It's been a long, hard, arduous toil here over the last 3 days. Finally, Milind Wagle gets his favorite cup of coffee. And don't worry, there's no let up in momentum. There's no let up in steam. As the athletes are going on and on the road to glory. One final time, one final look in what I would say is the first look at Gen Next of Team India, Indian Athletics. Harsh Rawat, 54.31. That was his first one. Harsh Rawat. Off he goes, Harsh from Chandigarh. Spears it out. Way off the 60-meter mark. Way off the 60-meter mark. It's a legal throw though. Certainly a legal throw. But you need to do much more than that. Whiteley looking at the replay. Knows he has to come back with an even bigger effort. That is just a shade over 50. 52.13. Up next, Dipanshu Sharma from UP. Dipanshu clears 60 meters. The big round of applause to Dipanshu Sharma. Long rangy youngster. Good technique. Open chested. Spanks it through. Falling well clear of the 60-meter mark. That's 62.28. Well done. Milind? Well, yes, that's the deciding factor in the javelin throw which you just watched. The speed of the release was perfect. That was the best possible release speed, which of course depended on the speed accumulated in the run-up and the efficient throwing. As we look at Harsh Singh, 52.25. Look at the grip there, providing a firm hold to make sure
that he gets the rotation to flight and stabilize it. There are, of course, various ways to hold it. The boy from Bihar, Harsh Singh. It's a wonderful evening under lights. The thumb and the index finger, the thumb and the second finger, and of course the index and the second finger. 59.73. In fact, in all the cases, the javelin lies along the palm of the hand, and the non-gripping fingers of the thumb is firmly wrapped around the binding. Time, of course, as the javelin wobbles, gets the trajectory, gets the velocity and the speed release. They have a hot cup of tea in their hands, but that doesn't stop them from sneaking in out here. A combination of Niti Rawat and Vikas. थैंक यू सो मच मिलिंद और संजीव। यहाँ पर अब बॉयज का जैवलिन थ्रो का फाइनल चल रहा है और वहां पर जो गर्ल्स का जैवलिन थ्रो फाइनल था, दीपिका ने जो है गोल्ड मेडल अपने नाम किया है एंड ऑल्सो सेट द मीट रिकॉर्ड विद 56.79 मीटर्स। अभी अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्शन देखने को मिला 200 मीटर्स में फाइनल्स में, दोनों ही सेक्शन में। क्या कंपटीशन, क्या टाइट कॉन्टेस्ट, एक स्ट्रॉन्ग बैटल देखने को मिला उस गोल्ड मेडल के लिए। और सरप्राइजिंगली 100 मीटर की जो गोल्ड मेडल है, मेडलिस्ट हैं, उनको जो है 200 मीटर्स के गोल्ड मेडल से हाथ धोना पड़ा। वी वर एक्सपेक्टिंग कि आज डबल गोल्ड मेडल उनकी किटी में आ सकता है, लेकिन सिया सावंत वहां पर जो है टॉप पोजीशन पे फिनिश नहीं कर पाई और अब उनको सिर्फ सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ेगा। मैं हूं नीति रावत और मेरे साथ इस समय कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं विकास। विकास, क्या इंटरेस्टिंग एक्शन जो है देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी खेल की जो अचीवमेंट होती है ना, वो यही होती है कि जो हम सोच रहे हैं ना, जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो ना हो, तब जो है खेल जीत जाता है। और अगर हम जो प्रिडिक्शंस करते हैं अगर वैसे ही नतीजा आए तो लगता है कि यार जैसा सोचा था वैसा हो रहा। इसीलिए कहते हैं कि खेल जो है वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और वही सरप्राइज जो है देखने को मिला हमें 200 मीटर गर्ल्स में। बिल्कुल, और अनिश्चितताओं में छुपा है रोमांच और उसी रोमांच को आगे बढ़ा रहे हैं ये जैवलिन थ्रो में युवा एथलीट। ये प्रयास 60 मीटर के आसपास का है, लेकिन वो मार्क जो है सेट किया हुआ 60 मीटर का उसको क्रॉस नहीं किया है। 357 यहाँ पर प्रयास आया था जरूर, लेकिन क्या इनका ये प्रयास, राहुल चौधरी हैं राजस्थान के, क्या उनका ये प्रयास उनको टॉप 3 में लेकर जाएगा? और बिल्कुल आज की शाम जो कि आखिरी है एथलेटिक्स के अंदर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के अंदर कुछ ज़बरदस्त फाइनल्स आज हमने देखे। किस तरीके से बॉयज़ सेक्शन में हमें चैंपियन मिला, उसके बाद से गर्ल सेक्शन में भी एक उलटफेर यूँ कहें कि देखने को मिला। चलिए जैवलिन थ्रो की भी बात कर लेते हैं। सुमित कुमार अपने अगले अटैम्प्ट के साथ निकले हैं उत्तराखंड के। विकास, जैवलिन थ्रो में जो मीट रिकॉर्ड है वो कुंवर अजयराज सिंह के नाम है, जो उन्होंने 2019 पुणे गेम्स में बनाया था। यहाँ पर ये थ्रो जो है हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, उसके बावजूद जो है उन्होंने 60 का मार्क भी टच अभी तक नहीं किया है। हालांकि और जैवलिन थ्रोअर्स जो है इस रेस में हैं जो 60 का मार्क टच ऑलरेडी कर चुके हैं। राजस्थान के राहुल चौधरी वहाँ पे थे, लेकिन अब अपने अटेम्प्ट के लिए रवि कुमार यादव उत्तर प्रदेश के।
जिस मार्क तक वहां पहुंच रहे हैं ये बॉयज, उस मार्क को 56.79 को ऑलरेडी जो है दीपिका छू चुकी हैं। तो कंपटीशन यहाँ पे बॉयज सेक्शन में उतना ज़्यादा अभी फिलहाल जो है शुरुआती क्षणों में देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले अटेम्प्ट्स में ये परफॉर्मेंस थोड़ा सा और बेहतर नज़र आएगा। हरियाणा के दो थ्रोवर्स जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं, आदित्य और आर्यन। यहाँ पे एक कंपटीशन देखने को मिल सकता है हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा में जो जावलिन थ्रो है उसका एक अपना ही डोमिनेंस है, और जिस तरह से नॉर्थ इंडिया से जैसे नीरज और खास तौर पे ये ऐसा स्पॉट है जहाँ पर उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा हैं भारतीयों को। नीरज चोपड़ा का जिक्र अगर इस स्पॉट के दौरान ना करे तो ये सही नहीं होगा। और जावलिन थ्रो में एक नई दिशा, एक नई डायमेंशंस मिली है हमारे देश को। 276 गौरव पटेल मध्य प्रदेश से, 60 का मार्क इस बार उन्होंने क्रॉस कर लिया। लगभग 61 के आसपास ये थ्रो होना चाहिए। एक परफेक्ट एंगल पर उन्होंने वो रिलीज किया है, और जिस तरह से ट्रैवल किया है पूरा ये जावलिन, वो साफ दिख रहा था कि वो 60 तो आराम से क्रॉस कर लेंगे। लगभग वहां 61.75 या 76 के आसपास उनका वो प्रयास जरूर होना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे अपने अटेम्प्ट बढ़ रहे हैं वैसे परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा इम्प्रूव होता नजर आ रहा है। और वी वर टॉकिंग अबाउट दी रिकॉर्ड वहां पे 75.40 का 2019 में बना था पुणे खेलो यूथ गेम में। तो लंबा समय निकल चुका है लेकिन अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं टूटा है। तो क्या आज ये 75.40 या उसके आसपास से कोई थ्रोअर नजर आएगा? फिलहाल जो अभी तक के प्रयास रहे हैं उसको देखकर तो नहीं लग रहा है। आदित्य प्रकाश आए हैं, मध्य प्रदेश के हैं, 55.99 मीटर का उनका वो अटेम्प्ट था जो सर्वश्रेष्ठ रहा है। अपने अगले प्रयास के साथ अच्छा रिलीज है लेकिन एलिवेशन नहीं मिला, इसकी वजह से वो डिस्टेंस भी नहीं कवर हो पाया और निराश होंगे। और ये देखिए फाउल भी यहाँ पे कमिट किया है, जो लाइन है उससे पहले आपको रिलीज करनी होती है और आप स्टेप आउट नहीं कर सकते रिलीज करने के बाद भी, तो यहाँ पर निराश होंगे। विकास, कभी कभी बॉडी का जो मोमेंटम होता है ना वो इतना ज्यादा फॉरवर्ड होता है कि आप उस लाइन के पास पहुंच के ना कुछ गलतियां कर देते हैं, और ये एक ऐसी स्टेज है, यूथ है यहाँ पर, तो ये गलतियां हमें इस स्टेज पर ज्यादा देखने को, हालांकि ओलंपिक जैसे स्टेज में ये जो मिस्टेक है, फाउल जो है हमें बहुत आराम से देखने को मिलता है, क्योंकि आपकी बॉडी इतने ज्यादा फॉरवर्ड मोशन में होती है, इतने मोमेंटम में होती है, उसका बैलेंस बनाना वही बस इस खेल की खूबसूरती है कि आप उस लाइन को जो है अपने जो बैक ऑफ द माइंड आपके लगातार चल रहा होता है कि उस लाइन के बिल्कुल नजदीक जाके आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस भी कवर करना है। तो एक अलग ही टेक्निक जिससे एक प्रेशर, एक दबाव जो है जरूर खिलाड़ियों पे नजर आता है। अलग अलग शैली होती है खिलाड़ियों की, और यकीनन यहाँ जो शैली है, नीरज चोपड़ा को हमने देखा है जब भी वो रिलीज करते हैं जेवलिन तो अमूमन वो जो लाइन होती है वो वहां पर खुद को बहुत सही तरीके से कंट्रोल करते हैं। जमीन के बल गिरते जरूर हैं लेकिन संभालते हैं खुद को। वहीं नदीम जो कि पाकिस्तान के एक बहुत ज़बरदस्त थ्रोअर हैं जेवलिन थ्रो में, उनको अगर आप देखेंगे तो वो पूरा ताकत का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर एक बढ़िया अटेम्प्ट आया है, 62 मीटर के आसपास का ये अटेम्प्ट है दीपांशु शर्मा का। ये अटेम्प्ट क्या उनको लेके जाएगा टॉप 3 में? 469, उम्मीदों का भार जो लेकर चल रहे हैं उस उम्मीद पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। ये प्रयास कितना डिस्टेंस मिला है, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार रहेगा। विकास, अगर एक बार और इस एक्शन का रीप्ले मिल जाता ना तो मैं जरूर देखना चाहती थी कि उनका फुटवर्क देखिए, क्या स्किलफुल उनका फुटवर्क था, क्या मूवमेंट थी उनकी, कमाल का जो उनका फुटवर्क था। और जिस तरह से कहते हैं ना कि किसी एक टेक्निक के साथ और जितना स्किल आपके अंदर होना चाहिए, वो उन्होंने उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल वहां पे दिया हो। हालांकि हम बार बार जो है यहाँ पर सोच रहे हैं कि 75.40 वो एक बड़ा मार्क है, उस तक पहुंचना क्या आसान है या फिर टफ होगा इन खिलाड़ियों के लिए, लेकिन वो 62 मीटर्स का जो अटेम्प्ट था वो जबरदस्त। दीपांशु शर्मा का उत्तर प्रदेश से आते हैं और फिलहाल इस समय अपने अटेम्प्ट के लिए ये काफी दूर है, ये काफी दूर है फिलहाल पोडियम पे फिनिश करने के लिए, ये उनके लिए काफी नहीं होगा। बिहार के हर्ष सिंह, और आपके अप्रोच रन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं अपने इस अटेम्प्ट को लेने के लिए। देखिए किस तरह से आपको बॉडी को स्ट्रीमलाइन करना होता है। आपके अगर आप नजरें
लगाएं उनके पैरों पे, और फिर किस तरह से जावलिन ट्रैवल कर रहा है, कि आपने किस तरह से अपने एनर्जी को कन्वर्ट किया है और ट्रांसफॉर्म किया है कि वो जावलिन की जो रीच बढ़ा देता है। और एक और अच्छा प्रयास ऐसा लग रहा है, 418 60 मीटर के आसपास का कनी शकरात हैं यहाँ पर, जो कि ये अटेम्प्ट लेने में प्रयास जो उन्होंने किया था वो 60 मीटर के आसपास का गया, लेकिन क्या उनका ये प्रयास उनको पदक की दौड़ में लेके जाएगा? दीपांशु शर्मा अभी जो मुझे सूचना है उस हिसाब से सबसे आगे चल रहे हैं, 62.94 मीटर का उनका अटेम्प्ट आया था।